Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start new chapter which name is verbs. और verbs के बेस पर हम सीखेंगे बच्चों tenses को. So let's get started students. The tense is the form of a verb indicating the time of an action, state, etc. Example, I learn English. So ये है बच्चों simple present tense. While communicating, we often need to tell about the time of an event or happening. These events may be of the past or may be happening as one speaks or may also takes place in the future. Tenses tells us what time is being mentioned. तो tenses क्या बताते हैं बच्चों? Timing को बताते हैं यहाँ पर. The tense of a verb tells us the time of an action performed or the state of something. It tells us whether it takes place in the present, took place in the past or will take place in the future. Next है बच्चों, there are three main tenses होते हैं हमारे. The present tense, the past tense and the future tense. For example, I play, ये है बच्चों present tense. I played, this is the past. I shall play, this is the future tense बच्चों. Each of these tenses has four forms, जिसमें simple, continuous, perfect और perfect continuous हम पढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों simple tense. The simple present tense के बारे में सबसे पहले रीड आउट करेंगे और समझेंगे विद एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. Simple present tense is formed by using root form of the verb V1 with S or ES plus object. This is used first to describe an action which is performed or done regularly. For example, we take a bath every day. The I goes to school in the morning. And second में to express a universal truth or a scientific fact के लिए यूज किया जाता है. For example, the sun rises in the east. Truth alone triumphs. Next है बच्चों थर्ड कैटेगरी में कब यूज करेंगे इस टेंस को? Third, to describe an event or action that has been already planned for the future or is fixed. For example, his marriage is on 23rd February. The train departs at 5 p.m. this evening. Fourth है बच्चों in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. For example, here comes the bus and there goes the principal. नेक्स्ट है फिफ्थ कैटेगरी फॉर करंट एक्शंस और स्टेट्स के लिए यूज किए जाते हैं बच्चों. फॉर एग्जांपल, मिसेस वर्मा टीचर्स मैथ्स, मनीषा इज अ स्टूडेंट. नेक्स्ट है बच्चों द सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहां पर किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं इसमें. सो दिस टेंस इज यूज्ड बच्चों यहाँ पर काफी कंडीशंस दी गई है कि कब हम इस पास्ट टेंस का यूज करेंगे. फर्स्ट, फॉर एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट. For example, he left for Delhi in the morning. The principal scolded him. Second category है बच्चों to indicate a past habit के लिए. For example, she practiced dance for many hours. He always went to sleep at 10 p.m. थर्ड कैटेगरी कहलाएगी बच्चों to narrate a story, past event और actions के लिए. For example, I learned Sanskrit in class 5th. Lord Rama defeated Ravana. Then the past tense of the most verbs is formed by adding ed to them. फॉर एग्जाम्पल, लुक, लुक्ड एंड लाफ, लाफ्ड. ईडी ऐड करके हम बना सकते हैं बच्चों पास्ट फॉर्म. द सिंपल फ्यूचर टेंस को कहां पर यूज करते हैं बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल और विल फॉलोड बाय V1 के साथ हमेशा यूज किया जाता है. दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इवेंट और एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. जो फ्यूचर में होंगे ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट करता है. इन दिस टेंस शैल और विल इज एडेड बिफोर द वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं. For example, I will have my exams in June. She will go to the market tomorrow. Shall is generally used with the pronoun I and we के साथ use किया जाता है. Will is used with all other pronouns such as you, he, she, it, they, etc. Next है बच्चों the continuous tense. This denote an action or event which is still continuing. जो अभी चल रहा है बच्चों उसके लिए use करते हैं continuous tense का. For example, the dog is barking. They were playing in the park. He will be sleeping at this time. Then है बच्चों next the present continuous tense. The present continuous tense is formed by using the present tense of the verb. जिसमें be होता है बच्चों is, are, am, V1 plus ing का यूज करेंगे. For example, I am speaking the truth. This tense is first यहाँ पर कंडीशन बताई गई बच्चों कब यूज करते हैं इसको. For an event or action that is taking place currently के लिए. For example, I am studying, she is going there. सेकेंड कैटेगरी फॉर ए टेम्परेरी सिचुएशन और एक्शन दैट इज करेंटली ट्रू और टेकिंग प्लेस के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, रेखा इज वर्किंग हार्ड. थर्ड कैटेगरी कहलाएगी बच्चों फॉर डिस्क्राइबिंग एन एक्टिविटी परफॉर्म रेगुलरली और हैबिट बाय एडिंग एडवर्ब सच एज ऑलवेज, फॉर एवर एंड कॉन्टिन्यूसली के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज वॉचिंग टीवी, द कैट इज ऑलवेज म्याऊइंग. नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ कैटेगरी टू डिस्क्राइब एन इवेंट विच इज टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर बाय एडिंग एडवर्ब्स लाइक टुडे, टुमारो, एटसेट्रा.
जिसमें एग्जांपल्स दिए गए बच्चों, रामू इज कमिंग टुडे, आई एम गोइंग देयर टुमारो। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं बच्चों कब? द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वॉज वर्ब के साथ यूज करते हैं, प्लस V1 प्लस ING का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब का यूज करते हैं इसमें। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट. The time is often event may not be defined. For example, we were watching television in the afternoon. It was getting darker when I came home. नेक्स्ट है बच्चों, दिस टेंस इज यूज्ड किस कंडीशंस में? फर्स्ट है टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन और ऑकर सम टाइम इन द पास्ट के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मीरा वाज गोइंग टू अनु येस्टरडे, हर फादर वाज वाचिंग न्यूज ऑन टीवी। एंड सेकंड कैटेगरी है बच्चों, टू डिस्क्राइब अ persistent हैबिट ऑफ द पास्ट विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, ऑफन, कंटिन्यूअसली एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल, ही वाज कंटिन्यूअसली प्रैक्टिसिंग मैथ्स, शी वाज ऑलवेज प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। And third है बच्चों, to denote that an action was occurring when a second one occurred. For example, mother was putting the child to sleep when the bell rang and it woke up. My father was driving when the cat ran across the road. यूज किए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी कहलाती है बच्चों द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। ये कब यूज किए जाते हैं और कैसे यूज करते हैं बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल, विल प्लस बी प्लस V1 ING के साथ यूज करते हैं। This represent an action as going on at some times in the future by adding the verb be after will or shall. For example, I will be traveling at this time tomorrow. It is used to denote an action or event that is supposed to take place sometime in the future. For example, he will be going to Delhi next week. I shall be appearing in my exam next month. Next tense है बच्चों the perfect tense. The perfect tense use the verb has, have and had as an auxiliary. Also, all the three perfect tenses use of the past participles instead of the present participle. These three tenses are the present perfect, the past perfect and the future perfect के लिए यूज किए जाते हैं। To form the present perfect tense, we add the simple present tense forms of the verb have, has और have as auxiliary verbs before the past participle से पहले यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो आपने देखा कंप्लीटेड से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हम पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब। दिस इज यूज्ड, फर्स्ट कंडीशन रहेगी टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज एट प्रेजेंट, जो आपकी कंप्लीट एक्टिविटी हो चुकी है बच्चों प्रेजेंट में, उसके लिए यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज जस्ट कम, ही हैज जस्ट ब्रोकन। एंड सेकंड कैटेगरी कहलाएगी बच्चों टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड नैंसी आर्टिकल्स? आई हैव नेवर सीन हिम सो एंग्री। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड कैटेगरी, जिसमें हम पढ़ेंगे टू डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट्स व्हेन वी थिंक ऑफ देयर इफेक्ट्स इन द present rather than the action itself. For example, I have broken my slipper, he has finished his homework. And fourth category कहलाएगी बच्चों टू डिस्क्राइब एन इवेंट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेंस, जिसमें पढ़ेंगे द पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ विद एग्जाम्पल। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब का यूज करते हैं इसके अंदर। टू फॉर्म दिस वी एड द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव। Example, had. For example, I had left for school before he came. This is used to describe the sequence of events or actions performed in the past के लिए यूज करते हैं। For example, the train had left when he reached the station and he had submitted the answer sheet before the bell rang. नेक्स्ट टेंस रहेगा बच्चों फ्यूचर को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Future perfect tense is formed by using shall, will plus have, then past participle of verb का यूज करते हैं इसके अंदर। To form this tense, we add the simple future tense from the verb have followed by past participle of verb का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया गया है I shall have finished my work by 6 PM. This is used to show an action that will have been completed in the future. For example, he will have left by the time you reach there. Maya will have finished her lunch by the time the dessert arrives. Next tense रहेगा बच्चों the perfect continuous tense को लेकर। All the perfect continuous tenses show the continuity and duration of the tenses के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके अंदर हैज, हैव प्लस बीन एंड V1 ING का यूज करते हैं। This is used to denote an action or event which began in the past and is still continuing.
we use this tense instead of the present perfect tense when we want to show the continuity duration of the actions के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों यहाँ पर, I have been looking for you for 1 year. This building has been under construction for 3 years. तो टाइम के साथ हमेशा बच्चों यूज किया जाता है इस टेंस को। नेक्स्ट है बच्चों द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम हैड बीन प्लस V1 ING का यूज करते हैं। टू फॉर्म दिस वी टेंस यूज हैड प्लस बीन प्लस V1 ING का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, दिस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन इवेंट वाज हैपनिंग इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years व्हेन जॉन केम टू स्कूल। द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज करेंगे बच्चों शैल, विल, हैव प्लस बीन एंड V1 ING का जरूर करना है यूज बच्चों यहाँ पर। दिस रिप्रेजेंट एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर फॉर सम टाइम के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन लिविंग इन मेरठ फॉर 10 years व्हेन यू कम टू सी दैम इन 2015। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सभी टेंसेस कंप्लीट कर लिए हमने चारों के चारों। तो आप इसको पढ़ेंगे और रीड आउट करते हुए, समझते हुए, जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर से रिलेटेड, टेंसेस से रिलेटेड या यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, उन सबको कंप्लीट करेंगे खुद से आप।